Hello friends, how are you? I'm Ashok. Welcome in my channel. Friends, today in this video I'm going to tell you a great poem, and this poem is included in 8 standard syllabus, English medium board syllabus. Okay. So this poem is very interesting, and this poem composed by the Rabindranath Tagore. Okay, the poem's title is Vocation. Okay, the poem's title is Vocation. So let's we move towards our today's poem. Friends, before I move towards our today's video, I request you from my core of heart, if you are new watcher here, then please subscribe this channel for getting you latest and more videos. Okay, let's we move towards our today's video, and the poem is Vocation, composed by Rabindranath Tagore. Okay, let's we move. So friend, this is our today's poem. The name or the title is Vocation. Vocation, it means doing work or completing our duty as or from we born. Okay, suppose I am from the farmer's family, so I'm moving towards the becoming farmer. If I am from the I'm from the doctor's son, so I'll make in my future a doctor, or I'll be see a dream becoming a doctor. So like that, vocation, it means doing work as the thinking of their born duties. Okay, so like that. Let's we move the first paragraph. Let's we see what the first stanza is there. Friends, I'll read the one or two lines where the full stop or where the semicolon is there, and then I'll stop my uh, reading, and then I'll tell you the meaning, whether you are from the Maharashtrian, whether are you from the different states. So you can understand. I'll tell you it in Hindi, and I'll tell it also in English. Okay, so let's see. When the gang sounds, sorry, when the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane. So gong, it means, here is in the right side, the meaning is a flat metal bell rung to draw people's attention. So gong, it whenever the means sailor comes into the village, so at that time they use gong sounds for attracting the people towards that sound. Okay, so the time was 10 morning, and when this means I it means the poet was walking to the school by the lane. Then every day I meet the hawker crying, bangles, crystal bangles. So every day that poet met to the hawker, and hawker was saying loudly, okay, bangles, crystal bangles. So uh, this word he was speaking loudly for attracting the people toward the sound, so that hacker can sell his bangles, crystal bangles. So that's why he was speaking loudly. Then नाउ आई टेल यू इन हिंदी. तो अब ये जो पोएट है वो स्कूल की तरफ जा रहा है, सुबह के 10 बजे है, 10 बजे है. और गोंग, गोंग जो ये वर्ड आया है, जिसका मीनिंग क्या है कि उस आवाज की तरफ अट्रैक्ट होना, आकर्षित होना. तो ऐसा एक आवाज आता है जिसकी तरफ लोग क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं. और हर दिन क्या होता है, जब ये पोएट उस हैकर को मिलता है, तो ये हैकर जोर जोर से बोलते हुए उसे नजर आता है, क्या कि बांगड़ा ले लो बांगड़ा, ऐसा ये बोलते वक्त उसे नजर आता है. देन नेक्स्ट स्टांजा. देयर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन, देयर इज नो रोड द मस्ट टेक, no place he must go to, no time
when he must come home. So for him there is nothing to hurry. For him there is no road to must take him. There is no place he must go to. There is no time when he uh, back return to his home. So there is no time to him. अब वो कहीं पर भी जा सकता है, उसके लिए जल्दी नहीं है, ना ही उसके लिए जो रास्ता है वो कहीं दूर ले जाता है, क्योंकि उसे जहां जाना है वहीं वो जाता है। ना ही कोई ऐसा ठिकान है जहां पे वो जाना उसे उसके लिए मस्ट है, जाना उसके लिए जरूरी है। वो वहीं जाता है जिसे वहां जाना है। वो जो हैकर है वहीं जाता है वो जिसे वहां जाना है। देन अब ऐसा कभी भी वक्त नहीं आता जो वक्त उसको घर जल्दी से बुलाता है या फिर घर जाना ही है, ऐसा वक्त नहीं है। ठीक है, तो उसे जब चाहे तब वो घर जा सकता है, जब चाहे जिस रास्ते से चाहे उस रास्ते से वो जा सकता है। तो ये यहाँ तक सेकंड जो स्टांजा है उसकी जो 3 लाइनें हैं हमने वो देखी है। नेक्स्ट लाइन, आई विश आई वर ए हॉकर। तो पोएट जो है वो विश करता है कि जब अगर काश मैं भी अगर हॉकर होता तो क्या होता, स्पेंडिंग माई डे इन द रोड। तो पूरे दिन पूरा वक्त वो उस रोड पे होता और क्या करता, बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, ये ऐसे जोर जोर से बोलता, चिल्लाता। When at 4 in the afternoon I come back from the school. Now the time is when, अब टाइम चेंज हो गया, अब वो स्कूल खत्म हुई और स्कूल से अब वापस आ रहे हैं। तो अब कौन दिखता है उन्हें, देखिए, I can see through the gate that house the gardener digging the ground. अब वो गेट से दिखाई देता है कि जो गार्डनर है वो क्या कर रहा है, ग्राउंड को डिगिंग कर रहा है। डिगिंग मीन्स खोदना, खोद रहा है। He does what he likes with his spade. He soils his clothes with dust. Nobody takes him to task. If he gets baked in the sun or gets wet. अब जैसे ही स्कूल खत्म होती है 4 बजे, तो पोएट बोलता है कि वो गेट से वहां से जब वो देखता है तो उसे वो गार्डनर डिगिंग करते हुए, ग्राउंड में डिगिंग करते हुए, खोदते हुए उसे नजर आता है। और फिर उसको क्या पसंद है, वो क्या करता है, खोदता है और फिर कुछ सॉइल्स है उसको, यानी बी है, वो कुछ बी वहां पे लगाता है, डुबाता है। और फिर उसके जो क्लॉथ्स है वो पूरे मैले हो जाते हैं, डस्ट में मैले हो जाते हैं। पर कोई भी उसे जो हार्ड टास्क है वो देता नहीं, वो खुद वो करता है। और सन में दिन भर रहना, यानी बेक्ड होना, यानी क्या बोलते उसको कि गर्मी से ये होना। फिर उसके बाद उसको वेट भी आता है, फिर भी वो उसका काम उस गर्मी में उस दिन भर वो उसका काम करते रहता है और वो उसके मन के ऊपर, कोई भी उसको फोर्स नहीं करता। I wish I were a gardener digging away at the garden with nobody to stop me from digging. फिर ये पोएट विश करता है, जो स्कूल में स्कूल से जो आए वाला बच्चा है, जो पोएट है, वो फिर इमेजिनेशन करता है कि काश अगर मैं भी गार्डनर होता तो मैं क्या करता, मैं गार्डन में ऐसे ही खोदता, दिन भर खोदता और कोई भी मुझे बुलाता नहीं, कोई भी मुझे स्टॉप नहीं करता। ये डिगिंग का काम जो है वो कोई भी मुझे स्टॉप नहीं करता, ऐसे मैं काम दिन भर करते रहता। देन नेक्स्ट लाइन, जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड। फिर क्या होता, जैसे ही डार्क हो जाती, यानी इवनिंग के बाद जो दिन है वो ढलने लगता, तब क्या करती, जो बॉय बोलता है, वो स्कूल बॉय बोलता है कि मदर उसे क्या करती, सोने के लिए भेज देती। देन क्या होता है अब नेक्स्ट, I can see through my open window the watchman walking up down the lane is dark and lonely. जब ये वॉचमैन जो है वो कैसे कब दिखता है, जब ये स्कूल बॉय जो है वो सोने के लिए चला जाता है, उसकी माँ उसको सोने के लिए भेजती है, तब उस छोटी से विंडो में से ये बॉय को दिखाई देता है कि एक वॉचमैन है
और वो क्या कर रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है लेन में से। अब वो जो लेन है वो कैसी है, डार्क है और लोनली है, बिल्कुल ये वॉचमैन अकेला है, कोई भी उसके साथ वहां पे नहीं है। और फिर वो जो पोएट है या फिर वो स्कूल बॉय वो विंडो में से देख रहा है ये सब। फिर आगे, एंड द स्ट्रीट लैम्प्स stands like a giant with one red eye in its head। उसके यहाँ पे जो टोपी है, हम लेफ्ट साइड में जो पिक्चर है वो वॉचमैन का वो हम देख सकते हैं। तो उस पिक्चर में एक रेड आई उसके कैप के ऊपर दिया है, जो हेड के ऊपर कैप है ना, उस कैप के ऊपर एक रेड आई दिया है। अब एक ही आई है, हाँ, वन आई। तो ये वन आई अगर आपने होमर्स की ओडिसी फिल्म या फिर ओडिसी नॉवेल अगर पढ़ी, मूवी भी है ओडिसी की, ओडिसी होमर की मूवी भी है या फिर होमर की ओडिसी नॉवेल भी है। अगर आप वो पढ़ते हो तो आपको समझ में आएगा कि एक वन आई मैन रहता है उस ओडिसी में। हाँ, उस नॉवेल में, उस मूवी में एक वन आई मैन रहता है। वो एक गैंग की जैसा रहता है, बहुत विशाल महाकाय राक्षस के तौर पे उसे पेश किया है। तो वैसे ये वॉचमैन है बहुत बड़ा, जो खुद को ऐसे समझता है। तो उसने क्या की है, एक वन आई जो टोपी है, कैप है, वो पहनी है। और वो कैसी है, उसका आई रेड आई है। और वो लैम्प के साथ, यानी उसके हाथ में कंदील है। हाँ, तो वहां पे वो खड़ा है। द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न एंड वॉक्स विथ हिज शैडो एट हिज साइड। अब उसके हाथ में लैंटर्स है। अब इस पिक्चर में तो लैंटर्स नहीं दिया, यानी दिया, तो लैंटर्स उसके हाथ में नहीं है। तो वो बोलता है, बच्चा जो खिड़की में से देख रहा है, कि ये जो वॉचमैन है हाथ में लैंटर्स लेके इधर उधर घूम रहा है, चल रहा है। और उसकी जो शैडो है, उसकी जो परछाई है, ये परछाई उसके आजू बाजू में चल रही है। एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ। और कभी भी वो, यानी रात में कभी भी वो सोने के लिए नहीं जाता। नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ। देन अब ये इमेजिनेशन करता है, कैसी, आई विश आई वर अ वॉचमैन, आई वॉकिंग द स्ट्रीट्स ऑल नाइट। काश मैं भी अगर वॉचमैन होता तो मैं क्या करता, पूरी रात भर, पूरी रात भर इस स्ट्रीट के ऊपर, इस गली में मैं क्या करता, घूमता। चेसिंग द शैडोज विथ माई लैंटर्न। चेसिंग द शैडोज इट मीन्स कुछ इमेजिनरी गोल होते हैं हम ना, जब हम गाड़ी पे जाते हैं या फिर हम चल रहे होते हैं, बस में होते हैं, अक्सर बस में भी ये होता है। जब हम सीट के ऊपर बैठते हैं बस में, तो हम कुछ ख्वाब देखते हैं बैठे बैठे, कि मैं अब आगे जाके ये बनूंगा, ये करूंगा, है ना। अगर हम डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं तो मैं सबसे क्लास में बेस्ट रहूंगा। ये ऐसे बस में बैठे बैठे हम ये ऐसे इमेजिनेशन करते हैं, यहाँ अपना गोल रहता है। वैसे ये लड़का बोलता है कि मैं अपने गोल्स के साथ चेसिंग करूंगा जब वो वॉचमैन रहेगा, तब ये ऐसे उसके मन में ऐसे सब इमेजिनेशन वो करेगा। तो ये पूरी इमेजिनिकल पोएम है। द पोएम इज कंपोज्ड बाय द रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, on the page number 27 we learn the poem vocation. Okay, so I hope you understood all the poem. I think I clear my point here well. If you have any difficulty, any doubt about anything, then you can ask me, comment me in the comment box. Okay, so thanks for watching this video. Have a nice time. Bye.